السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایکسل میں نمبر گروپ کا کیا رول ہوتا ہے۔ فرینڈس، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سو لیٹس موو ٹو دی لیپ ٹاپ اسکرین۔ تو فرینڈس، ہم آ چکے ہیں اپنے سسٹم کے اسکرین پر، اور آج ہم جو گروپ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے نمبر گروپ۔ نمبر گروپ کے اندر آپ کو بہت سارے آپشنز ملیں گے۔ ان آپشن کی لوگ کم ہی بات کرتے ہیں، لیکن یہ آپشن ایکسل کے اندر بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے جنرل کیٹیگری کا۔ یہاں پر ساری کیٹیگریز جو ہوتی ہیں ان کے اندر وہ ساری میں نے یہاں پر لسٹ بنا کے رکھ دی ہے، ہم اس میں ایک ایک کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہوتی ہے جنرل، نمبر، کرنسی، اکاؤنٹنگ، شارٹ ڈیٹ، لانگ ڈیٹ، ٹائم، پرسنٹیج، فریکشن، سائنٹیفک، اور لاسٹ والی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکسٹ۔ اور اس کے اندر آپ کسٹم بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس نمبر سسٹم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جنرل کیٹیگری سیٹ ہوتی ہے۔ جنرل میں اگر آپ کوئی بھی نمبر لکھیں، فار ایگزامپل یہاں پر میں نے 1 2 3 لکھا ہے، اس کے بعد آپ جیسے انٹر کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ میں چلا جاتا ہے۔ جو بھی آپ نمبر لکھو گے جنرل میں وہ رائٹ سائڈ جاتا ہے، اور اگر جو آپ ٹیکسٹ لکھو گے وہ لیفٹ سائڈ میں جاتا ہے۔ یہ ایکسل میں اس کا اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن جنرل کا صرف یہ کام نہیں ہے، اب آپ کو مزید میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ جنرل میں کیا ہوتا ہے۔ جنرل میں اگر آپ کوئی بھی نمبر لکھتے ہو 9 ڈیجٹ کا، دین اس کے بعد 2-3 ڈیجٹ اور ایڈ کرتے ہیں، یعنی 11 نمبر کا میں نے ایک نمبر لکھ دیا ہے 11 ڈیجٹ کا، جس میں 11 نمبر ایڈ کیے ہیں، ڈیجٹ ایڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے اندر آپ 12واں نمبر ایڈ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ دیکھنا انٹر کرتے ہو تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے کی ویلیو آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سائنٹیفک ویلیو۔ سائنٹیفک ویلیو کا جو بیس ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے، وہ 10 ہوتا ہے۔ آپ 1 کی بھی معلوم کر سکتے ہیں سائنٹیفک ویلیو، اور کوئی بڑا نمبر ہے آپ کا تو آپ اس کی بھی ایزیلی جو ہے وہ سائنٹیفک ویلیو معلوم کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے جنرل کیٹیگری میں صرف اور صرف آپ 11 نمبر ایڈ کر سکتے ہو۔ اگر 12واں نمبر ایڈ کرو گے تو اس کے ساتھ ای اور پلس کی سائن لگ جائے گی۔ دین اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہو تو ٹیکسٹ کا کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا چاہے آپ اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہو، اس میں کوئی آپشن آپ کو نہیں آتا۔ فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دین ہمارے پاس آپشن ہے نمبر گروپ کا۔ آپ جتنا ایریا سلیکٹ کرو گے اتنے ایریا پر آپ یہ چیز اپلائی کر سکتے ہو۔ تو میں نے اتنا ایریا سلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو کر دیا ہے نمبر۔ نمبر جیسے ہی آپ لکھتے ہو تو اس کے ساتھ بائی ڈیفالٹ آپ کی ڈیسیمل آ جاتی ہے، نمبر بھی آئے گا اس کے ساتھ ڈیسیمل۔ ڈیسیمل کو ریموو کرنے کا آسان سا طریقہ، یہاں سے جا کر آپ ڈیسیمل کو ریموو کر سکتے ہو، یہاں سے آپ ڈیسیمل کو ایڈ بھی کر سکتے ہو۔ فرینڈس، صرف نمبر کا یہی استعمال نہیں ہے، اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نمبر کا اصلی استعمال ہوتا کیسے ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کوئی بھی ڈیجٹ لکھا ہے، فار ایگزامپل یہاں پر میں نے کم سے کم 15 ڈیجٹ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 ڈیجٹ جب آپ نمبر میں لکھتے ہیں تو آپ کے ویسے ہی ڈیجٹ شو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 15 کے بعد آپ کوئی نمبر ایڈ کرتے ہو، 16 17 18 جتنے بھی نمبر ایڈ کرو گے وہ ان کو 0 میں کنسیڈر کرتا ہے، وہاں پر آپ کو 0 شو ہوگا، آپ کا جو نمبر آپ نے لکھا ہوگا وہ شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں نمبر۔ نمبر میں ہوتا ہے کیا ہے، آپ کے 15 جو ڈیجٹ ہوں گے وہ ویسے ہی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ اس کے بعد جتنے بھی ڈیجٹ اس میں ایڈ کرو گے تو وہ سارے 0 0 0 میں کنسیڈرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پورا نمبر دیکھنا ہے جو آپ نے لکھا ہے تو وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ نمبر آپ کیسے لکھ سکتے ہو، جنرل میں لکھو گے یا نمبر میں، ان دونوں میں سے نہیں، آپ اس کو کسی اور جو ہے وہ فارمیٹ میں لکھ سکتے ہو، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں۔ فرینڈس، اس کے بعد بات ہوتی ہے کرنسی کی۔ اب کرنسی کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فیس وغیرہ لکھتے ہو تو اس کے لیے آپ یہاں سے کرنسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہو۔ جیسے میں لکھتا ہوں، یہاں پر میں نے 7000 لکھ دیا ہے، جیسے میں انٹر کرتا ہوں تو 7000 ویسے ہی جو بائی ڈیفالٹ ہمارا جنرل میں ہوتا ہے ویسے ہی لکھ کر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر آ کر میں اس کو کرنسی میں سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کرنسی میں نے جیسے ہی سلیکٹ کیا تو یہاں پر ہوا کیا، اس کے ساتھ ڈالر سائن لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈالر سائن کا مطلب کیا ہے، آپ کے جو کنٹری ہوگی اس کا جو سمبل ہوتا ہے، جیسے ہمارا RS ہے، باقی کا ڈالر ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے یوروز ہوتے ہیں، چائنیز کا کچھ اور ہے، تو اس طریقے سے ان کے بہت سارے وہ جو ہیں اپنی کرنسی کے جو ہیں وہ نمبر فارمیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ مور اکاؤنٹنگ فارمیٹ میں آ کر آپ اس کو
ठीक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अकाउंटिंग में आकर यहाँ से आप पाकिस्तान की जो है वो करेंसी, जैसे हम RS में शो करवाते हैं उसको, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, आप जो भी चाहें यहाँ से ले सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी फॉर्मेट होता है वो ज़रा एंड में होता है, तो यहाँ पर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर ये चीज़ भी अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख नहीं सकते P, तो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान, सिंधी पाकिस्तान, आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं उर्दू पाकिस्तान को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो उसके साथ RS की भी साइन लग जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। सॉरी, यहाँ पर मैं करेंसी की बात कर रहा था, मैंने अकाउंटिंग बता दिया है, दोनों सेम ही होते हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अकाउंटिंग और करेंसी में कौन सा फ़र्क होता है। जैसे ही आप कोई भी नंबर लिखोगे, जितने एरिया पर आपने ये चीज़ फॉर्मेट अप्लाई किया है उतने एरिया में यहाँ पर RS शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अकाउंटिंग बता रहा था, लेकिन मैं करेंसी बता रहा था, लेकिन अकाउंटिंग बता दिया। तो यहाँ पर मैं आपको करेंसी को आप बता देता हूँ कि करेंसी क्या होती है। सेम आप करेंसी का भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। दोबारा आपने यहाँ पर जाना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में, और यहाँ से आपने करेंसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। करेंसी को सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से पाकिस्तान की सिंबल ढूंढनी है। तो हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सिंबल हमें मिल जाए, क्योंकि वो एंड में होती है। तो आप इसको जो है वो जल्दी से ड्रैग कर दें ताकि आपको वो बात जो है वो मिल जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप जितने भी इसके फॉर्मेट्स हैं, जैसे जनरल है, नंबर है, अकाउंटिंग है, उसके बाद करेंसी है, इनके यहाँ पर जब आएंगे ना, इनका आप जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको इनके मज़ीद फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। आप जो भी फॉर्मेट इनमें अप्लाई करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ढूंढ लिया है, तो यहाँ से आपने सिंपल वही तरीका जैसे हमने अकाउंटिंग में किया था, यहाँ पर भी आप सेम करेंसी में भी आप वैसा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेम 7000 लिखा है, लेकिन जो RS है अकाउंटिंग में वो दूर लगता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, लेकिन जो आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या होता है वो बिल्कुल उसके करीब लगता है। सिर्फ दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप कोई और भी नंबर ऐड करें तो उसके साथ भी RS लग गया है। इस तरीके से आप अपने मुल्क, जो इस मुल्क में भी रहते हैं, आप अपनी कंट्री का जो है वो लगा सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद होता है शॉर्ट डेट। अगर आप डेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल और सेमीकोलन का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आज की जो डेट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ये होती है शॉर्ट डेट। अब डेट में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जो चाहे फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पर आकर मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। ये शॉर्ट डेट के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर लॉन्ग डेट के भी फॉर्मेट्स मिलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग डेट क्या होती है। शॉर्ट डेट में आपको शॉर्ट डेट मिलेगी और लॉन्ग डेट में आपको लॉन्ग डेट मिलेगी। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आप दोबारा जाएँ नंबर ग्रुप में और यहाँ पर आप इसको लॉन्ग डेट कर दें। लॉन्ग डेट में होगा कि यहाँ पर आपको डे भी शो हो जाएगा, देन जो मंथ चल रहा है वो भी शो हो जाएगा, डेट भी शो हो जाएगी और ईयर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सिर्फ यही फ़र्क होता है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास टाइम का ऑप्शन है। टाइम क्या करता है, यहाँ पर आपको टाइम बताएगा। फॉर एग्जांपल अभी जो टाइम हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8:30 बजे हैं, तो यहाँ पर इसको आप नंबर ग्रुप में जाकर अगर आप जब इसको टाइम कर देते हैं तो ये आपको टाइम फॉर्मेट में शो हो जाएगा। जैसे कि अभी 8:30 बजे, लेकिन AM हो गया है क्योंकि मैंने सुबह का टाइम लिखा है। अगर यहाँ पर मैं 20 लिख देता तो क्या होता, वो 24 घंटे में कंसीडर करता, उसको यहाँ पर PM शो होता फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज। अब आप कोई भी आप नंबर लिखते हैं और आप चाहते हैं कि उसके साथ परसेंटेज की साइन ऑटो आ जाए तो आप जो है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिस पर आप ये चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं सिर्फ इतने एरिया पर करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी लिखूंगा उसके साथ ऑटो जो है वो परसेंटेज की साइन शो हो जाएगी। अगर परसेंटेज की साइन आपको लगानी है तो आप इजीली परसेंटेज की साइन भी लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही नंबर लिखेंगे परसेंटेज की साइन उसके साथ साथ आ जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद होता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये क्या होते हैं, ये फ्रैक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर लिखा 1/2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 जनवरी। अब 1/2 को उसने क्या किया, उसने कहा कि 2 जनवरी, उसने उसको डेट में कंसिडर कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर फ्रैक्शन करनी है तो मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जाकर इसको मैं जब फ्रैक्शन कर दूंगा तो यहाँ पर आप जब भी 1/2 लिखेंगे तो वो वैसा ही लिखा जाएगा जैसा आप लिखेंगे 1/2, ऐसे 1/3, 1/4,
जितने भी आप नंबर लिखना चाहें वो यहाँ पर इजीली आप अपॉन में लिख सकते हैं, आपको कोई एरर नहीं आएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है साइंटिफिक वैल्यू। मैंने ये आपको ऊपर भी बताया, नीचे भी आपको बता देता हूँ। छोटे से छोटी रकम की भी आप साइंटिफिक मालूम कर सकते हैं, और कोई बड़ी रकम है तो आप उसको भी साइंटिफिक वैल्यू में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ऐड कर देता हूँ, आप भी कोई भी नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद उसके साथ ई और प्लस की साइन जो है वो लग जाती है, इससे शो होता है कि ये साइंटिफिक वैल्यू है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, साइंटिफिक के लिए कोई लिमिट नहीं होती इसकी, ठीक है। उसके बाद होता है टेक्स्ट। मैंने आपको बताया जनरल, उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर। जनरल में आप 11 कैरेक्टर लिख सकते हो, नंबर में आप 15 कैरेक्टर लिख सकते हो। लेकिन जब आप टेक्स्ट फॉर्मेट लेते हो, यानी यहाँ पर आप उसको टेक्स्ट में कंसीडर करोगे ना, तो जितना भी बड़ा नंबर लिखना चाहो, चाहे वो 20 डिजिट का हो, चाहे वो 50 डिजिट का हो, जितना भी आप बड़ा नंबर लिखेंगे आपका नंबर आपको वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर चाहिए उसको आपने हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये सारे नंबर ग्रुप होते हैं, तो इसमें आप सारे जितने भी होते हैं, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इनके और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्पेशल का इसमें जिप कोड वगैरह होता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जिप कोड के बारे में भी समझाऊंगा। देन उसके बाद होता है कस्टम। अब फ्रेंड्स, कस्टम क्या होता है, इसकी बहुत कम लोग ही बात करते हैं कि भाई कस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कस्टम में कोई भी फॉर्मेट बनाना है तो उसके लिए आपको सेम वैसे सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अभी देखना, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कस्टम होता क्या है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 09, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 9। अब मैं चाहता हूँ कि 0 भी उसके साथ आए। जैसे 0 पहले लिखता हूँ तो 0 नहीं आता और बाद वाला डिजिट आ जाता है, तो उसके लिए आपको कस्टम में जाना है। जनरल को यहाँ पर मिटाकर उसकी जगह आपने लिखना है 00। यहाँ पर आपको 2 फॉर्मेट मिलेंगे, यानी 00। आप कोई भी नंबर ऐड करोगे एक नंबर, तो उसके साथ 0 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा 1, तो 01 आ गया, 02, 03, 04। इस तरीके से आपको सारे नंबर जो हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप 3 नंबर ऐड करना चाहें तो आप वहाँ से जनरल को हटाकर आप वहाँ पर 3 0 लगाओगे, तो जो भी आप नंबर लिखोगे उसके साथ आपके 2 0 और ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ और उसके साथ मैंने लगा दिया केजी यानी किलोग्राम। ऐसे लीटर, मिलीलीटर भी आप लगा सकते हैं। तो होता क्या है, जब आप कोई भी नंबर लिखते हो उसके साथ केजी या ऐसी कोई भी सिंबल लगाते हो और उसको ऐड करते हो, मैं इसको ऐड करके आपको बता देता हूँ। जैसे ऐड किया, क्या रिजल्ट आया 0, इनका रिजल्ट नहीं आता। अगर आपको इनका रिजल्ट मालूम करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा से जाना होगा कस्टम में, और इसके लिए एक अलग से फार्मूला है, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और वहाँ से फिर आप इजीली जो है इनको भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा जनरल को और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हैश, ठीक है। तो आप हैश के बाद आपने स्पेस देना है, उसके बाद आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, ठीक है। उसके बाद केजी लिख के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। देन आप जो भी नंबर लिखोगे यहाँ पर उसके साथ ऑटोमेटिक ही केजी लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसके साथ केजी सब के साथ केजी, और इनको आप इजीली सम भी करवा सकते हैं। मैं इनको सम करवा देता हूँ तो ये इजीली इनका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। पहले क्या आया था, रिजल्ट इनका 0 आया था, लेकिन अब क्या आ गया, इनका जो रिजल्ट बनता है, इनका सम जो बनता है वो यहाँ पर शो हो गया है। इस तरीके से आप कस्टम में जाकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। तो एक और फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ जो कि कस्टम में मैंने बनाया है, वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। तो आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस नंबर से कम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन 3, मैंने यहाँ पर लिखा है लेस देन 3, और उसके बाद सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, देन आपने लिखना है लेस देन 3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आपने लिखना है जनरल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपने जनरल नहीं लिखना, आपने यहाँ पर लिखना है जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया है रेड कलर या ग्रीन कलर, XYZ कोई भी कलर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है जनरल, ठीक है। अब लिखना है आपने जनरल, और उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन भी सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन लगाने के बाद आपने दोबारा से सेम वही लिखना है, बट यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 यानी जो 3 से बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पर आप जो भी कलर देंगे उसके साथ लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया है ब्लू, और उसके बाद आपने लास्ट में जनरल लिखना है, बट यहाँ पर आपने सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करना। सेम
आपने यहाँ पर आके ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखोगे वो आपका कलरफुल होगा, एक ग्रीन होगा और एक रेड कलर होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही मैं 1 लिखता हूँ तो 1 आएगा रेड में, क्योंकि 3 से छोटा है, और जो 3 से बड़ा नंबर होगा वो आएगा ग्रीन में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कस्टम भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।